तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज आरजे अक्षत। एंड दिस इज आरजे प्रियांशी और आपने ट्यून किया है SPS वेव्स। जी हाँ, SPS वेव्स। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं एक महापर्व से जो कि है दीपावली, यानी कि दीपों का त्योहार। इसे पूरे भारतवर्ष में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और उन धूमधाम भरी आवाज़ों से आप सभी लोग अच्छे से परिचित होंगे, लेकिन दीपावली में धूमधाम की आवाज़ों के साथ साथ आती है दिवाली की सफाई, जिससे आज देश का हर नागरिक पीड़ित है। चलिए सफाई तो जो भी है, मेन बात पे आते हैं। दिवाली में लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा की जाती है। लक्ष्मी जी को हम धन की देवी मानते हैं और गणेश जी को विघ्नहर्ता। लेकिन हाँ, इस पर्व पे मिठाइयाँ खाने को मिलती हैं, उसमें मज़ा आ जाता है, और पटाखे फोड़ने को तो मिलते ही हैं। लेकिन दिल पे पत्थर रख के हमें इस बार ये कहना पड़ रहा है कि हम पटाखे नहीं फोड़ेंगे और फोड़ने भी नहीं चाहिए। हमें एक इको फ्रेंडली दिवाली मनानी है। बिल्कुल सही कहा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना ने हमारे सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है, तो वैसे ही दिवाली को भी कोरोना ने इफ़ेक्ट किया है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिवाली में हम सबके घर घर जाते थे, सबसे मिलते थे, गले मिलते थे, पर इस बार ऐसा नहीं करना है। इस बार अपने घर पे सेफ रह के दिवालियाँ मनानी है। चाहे तो आप फ़ोटो खींच सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, मिठाइयाँ खा सकते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बना सकते हैं, पर घर पे रहना है। स्टे सेफ, स्टे सुरक्षित। तो इसी के साथ आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब हम बढ़ते आगे। फिर हमने मनाया चिल्ड्रंस डे। The mid of November is a very special occasion for us. Every year, we celebrate 14 November as Children's Day. We celebrate it because it's the birthday of our first Prime Minister, Jawaharlal Nehru. His bond and bond with children were legendary. हो गया तुम्हारा? अब मैं ज़रा इसका संदर्भ सहित अर्थ बता दूं। अवश्य अवश्य। तो हम लोग चिल्ड्रंस डे को मनाते हैं जवाहरलाल नेहरू जी के बर्थडे वाले दिन। उनका लगाव और उनका जुड़ाव बच्चों से इतना ज़्यादा था कि उनकी जन्म तिथि वाले दिन ही हम चिल्ड्रंस डे मनाने लगे। तो अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत सीरियस टॉपिक के बारे में, दैट इज़ कैंसर अवेयरनेस डे, जिसके बारे में आपको बताएंगे डॉक्टर कपूर चौधरी, हु इज़ एन एक्सपीरियंस्ड ऑन्कोलॉजिस्ट। तो अब हम आपको उनका एक इंटरव्यू सुनाने वाले हैं। होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। Dear friends, I am Dr. Kapoor Chaudhary, the oncosurgeon practicing at Jodhpur. I will be talking about what is cancer, what are the myths of the cancer, how the cancer is being diagnosed, and how the cancer is being treated. Now, dear friends, cancer is the second leading cause of death following the heart disease. Today, in today's scenario, 18.1 million new cases are present in the world and 9.6 million cancer deaths occur globally. It is common 1 in 5 men and 1 in 6 women worldwide. Now, there is always a possibility of developing cancer. One woman dies of cancer every 8 minutes in India. The causes of cancer is tobacco products, which is the commonest cause of death, which that is due to smoked or smokeless tobacco. The estimated number of people living with the disease all over the world may be 2.25 millions. Now, cancer can occur at any age, but 60% cancers death occurs in the people who is older than 65 years of age. Cancer can affect any group of people, any nationality or any age. Now, how cancer occurs? Cancer is a group of the disease involving the abnormal cell growth with a potential to invade and spread to the part of the disease. Now, cancer has got we diagnose the cancer by clinical examination, means examination of the patient, by investigation like FNAC, what you call fine needle aspiration cytology or biopsy, histopathology, CT scan, X-rays, and the PET scan, etc., etc. Then once the cancer is diagnosed, then we treat the cancer in 4 different methods.
One is the surgery, second is the chemotherapy where we use chemicals to kill the cancer cells, third is the immunotherapy, and the fourth is the hormonal therapy. Nowadays, latest is the genes therapy, that is the fifth one, where we can treat at the genetic level also. Dear friend, one important point I would like to narrate is that cancer is a curable disease. Don't be surprised, because cancer can be cured if it is detected at the early stage, means it is diagnosed at the early stage and being treated at the early stage at the proper place. So, dear friends, don't have a fear about the cancer. Once if you have, don't worry about it. Go for the diagnosis, start the treatment at the proper place. You will have no fear and 80% chances at early stage that you will be cured of the cancer. So, dear friends, remember, cancer has no fear. There is no myth about cancer that cancer is a contagious disease. It can occur from one person to another, or a cancer is caused by simple curse of the person. Though these are all myths. Thank you very much. Now, moving towards Uttarakhand Foundation Day. Uttarakhand Day, also known as Uttarakhand Divas, is celebrated as the State Foundation Day of Indian state Uttarakhand. It is observed annually on 9th of November since 2000. आसान शब्दों में ये उत्तराखंड का बर्थडे है। इसके बारे में आपको और बताएंगे जंग बहादुर थापा जी, जो कि अल्मोड़ा के कर्मठ समाज सेवी हैं और इस समय कैंटोनमेंट बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। 9 नवंबर 2020 आज के दिन राज्य स्थापना दिवस उत्तराखंड में मनाया जाता है। मैं आज सभी शारदा पब्लिक स्कूल के छात्र एवं छात्राएं एवं स्टाफ को स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामना सहित बधाई देता हूं। आज ही के दिन 9 नवंबर 2000 सन को उत्तराखंड पूर्ण राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, जिसके उपलक्ष्य में आज के दिन उत्तराखंड राज्य की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तराखंड राज्य को अलग से बनाने के लिए उत्तराखंड में रहने वाले सभी लोगों ने आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन में कई नागरिक, कई लोग शहीद हुए। मैं आज स्थापना दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूँ। उत्तराखंड राज्य बनने के पश्चात जो भी सरकार रही हो, विकास की ओर उन्होंने कदम बढ़ाया और सभी नागरिकों को, सभी क्षेत्र के रहने वाले को हर एक क्षेत्र में विकास की ओर ध्यान दिया। हमें यह भी उम्मीद है कि आगे भी हमारे राज्य का विकास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से सभी उत्तराखंड निवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामना स्थापना दिवस पर देता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड। तो आज हम बात करेंगे अपनी मेन ब्रांच के एक स्टूडेंट के ग्रैंड पेरेंट्स से, जिनका नाम है डॉक्टर धारा वल्लभ पांडे जी, जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बल्टा में अध्यापक रह चुके हैं और इन्होंने NIOS DLED में मास्टर ट्रेनर के तौर पर कार्य किया है। तो चलिए बात करते हैं उनसे। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, हम आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं। तो पहला हम लोग का सवाल है कि आपको ऑनलाइन स्टडीज़ और स्कूल के थ्रू जो एक्टिविटीज़ करवाई जा रही हैं वो आपको कैसी लग रही हैं और आपकी क्या राय है इसके बारे में? आजकल कोरोना की वजह से विद्यालय बंद हैं, तो बच्चों की पढ़ाई का जो ऑनलाइन टीचिंग का मेथड चल रहा है, जिसमें गूगल मीट से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और बहुत सी तरकीबें अपनाई जा रही हैं। ये बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। बच्चे इससे बहुत कुछ सीख रहे हैं। खुद बच्चे गूगल मीट पर बैठ करके कैसे कैमरा ऑन करना है, कैसे ऑफ करना है, कैसे ऑडियो ऑफ करना है, कैसे ऑन करना है, वो सीख रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बच्चे दूसरे बच्चों को देख रहे हैं, वो कैसे बोल रहे हैं, कैसे जवाब दे रहे हैं, किस तरह से प्रश्नों का उत्तर
प्रश्न जो पूछे गए हैं उनका उत्तर किस तरह से दे रहे हैं, ये सब चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं और ख़ुद भी सीख रहे हैं। तो ये एक अच्छा प्रयास है और इस प्रयास में छोटे छोटे बच्चे बहुत कुछ सीख पा रहे हैं। तो आजकल बच्चे पूरा टाइम घर पे ही रहते हैं, तो आप कैसे हैंडल करते हैं उन्हें और उनका टाइम कैसे मैनेज करते हैं? बच्चे आजकल कोरोना की वजह से घर पर ही हैं, तो बच्चों को कुछ न कुछ काम चाहिए होता है, तो इसलिए वो घर के अंदर रहने पर मोबाइल को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, कार्टून वगैरह देखने के लिए जिद करते हैं। उनको खेलने का अवसर नहीं मिल पा रहा है, बाहर घूमने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। तो इसकी वजह से बच्चों को आजकल घर पर ही पेरेंट्स द्वारा कुछ ऐसे उपाय बताए जा रहे हैं जिससे कि बच्चे कुछ सीख सकें खेल खेल द्वारा। जैसे हम उनके जो खिलौने होते हैं उन्हीं के माध्यम से उनको काउंटिंग है, टेबल्स का ज्ञान है, या जो शब्द हैं उनकी किताबें हैं उन्हीं में से, या अखबार में से शब्दों को छांट करके बोलना है, सीखना है, या कहीं पर कोई चीज़ लिखी है तो उसमें औ कहाँ पर है या ए कहाँ पर है, बी कहाँ पर है, ऐसे कोई भी शब्द हैं उनको कैसे बच्चे पहचानते हैं और मिला मिला करके कैसे पढ़ते हैं, इस चीज़ का ज्ञान बच्चों को खेल खेल द्वारा दिया जा रहा है, जिससे बच्चों का मनोरंजन भी होता है और बच्चे सीख करके सीख भी लेते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो इसका एक ऐसे ही इस तरह से जो है उनका समय निकल जा रहा है और वो खेल भी ले रहे हैं और पढ़ाई भी कर ले रहे हैं। तो सर आखिर में क्या आप अपनी कोई बात या अपना कोई सुझाव हमसे शेयर करना चाहेंगे? इस कोरोना काल में हमारा सुझाव है कि बच्चों को इस डिजिटल टीचिंग से जानकारी दी जाए और साथ ही यह भी प्रयास किया जाए कि जो गूगल मीट से जो पढ़ाई चल रही है बच्चों की, उसमें बच्चों की एक्टिविटी को थोड़ा और बढ़ाया जाए, जिससे कि बच्चे एक्टिविटी में बहुत रुचि रखते हैं। हमारे परिवेश में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सी प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं जिनसे बच्चे बहुत कुछ बनाना सीखते हैं और आपने प्रयास भी किया है। हम देख रहे हैं कि हर शनिवार को जो है आप कोई न कोई एक्टिविटी कराते हैं, तो अच्छा लगता है। बच्चे उस दिन बहुत रुचि रखते हैं और अपने पेरेंट्स की मदद से बहुत सारी चीज़ें, तितलियाँ बनाना है या कोई चीज़ मछली बनाना है या कुछ इस तरह की चीज़ें बना करके जो है पक्षी बनाना है या आर्ट वगैरह है या और बहुत सारी चीज़ें बना करके जो है बच्चे उसमें काफ़ी रुचि ले रहे हैं। और उनकी रुचि को बढ़ाने के लिए, उनकी शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है। तो आशा करते हैं आप सभी को आज का एपिसोड पसंद आया होगा। हम फिर वापस आएंगे, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए दिस इज आरजे प्रियांशी एंड दिस इज आरजे अक्षत। स्टे सेफ, स्टे सुरक्षित and stay tuned. Bye bye.